Hi everyone. So we are continuing with differentiation part 2 and this is a full chapter revision. We are starting with derivatives of inverse trigonometric functions and we have already done the formulas in part 1. If you have not watched it yet, please go and watch it. The link of that video is in the description box. I have added a playlist and if you want to revise other chapters, you may do so by going to the main page of my channel. You'll get different playlists, different maths playlist for IC 12th boards. Now we'll start with some questions. D by dx of sine inverse root x. This will be 1 upon under root of 1 minus x square, that is root x whole square. In this case it is f of x, so we'll be writing 1 minus root x whole square. Multiply d by dx of root x. 1 divided by under root of 1 minus x into 1 by 2 root x. Moving on to question number 2. Now this is cos inverse f of x. D by dx of cos inverse x is equal to minus 1 divided by under root of 1 minus x square. In this case, it is fx. So we'll be solving it this way. Minus 1 divided by under root of 1 minus sine square x. Multiply d by dx of sine x. Minus 1 divided by under root of 1 minus sine square x is equal to cos x into cos x. Answer is minus 1. If you want to solve it yourself, you can do so. I am just explaining and revising the questions. Now I'll be starting with the most important topic of this chapter, which is a little bit typical, and if you practice it, you can master that portion. It is differentiation by transformation. In this case, you have to substitute the values and they will be equal to some trigonometric functions. I'll show you how to do this because you can avoid questions which are very typical in nature. For example, d by dx tan inverse 1 divided by under root of x square minus 1. If you start differentiating it the normal way, you'll get 1 divided by 1 plus this square, right? And then you have to solve it, take LCM and so on. What you can do is you can make a substitution. Let x is equal to, now this goes by hit and trial method. You can observe if I put x is equal to sine theta, I'm not getting any formula. But if I put x is equal to cosec theta, then you're getting a formula. That is under root of cosec square theta minus 1, which is equal to cot theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, right? यही फॉर्मूला है, मैंने वैसे ही इसको बस बता दिया डायरेक्ट आपको. अगर आपको कन्फ्यूजन है, यू विल बी सॉल्विंग इट लाइक दिस. सी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. अब इसका अंडर रूट ले लो आप दोनों साइड, तो वही तो आ रहा है. देखो तो ये वही है. आपको अपना माइंड पे लगाना है. ट्राई टू मेक and do the right substitution. In case you're not able to do it in the first attempt, then you have to practice. अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सब्सटीट्यूशन लगना है इस क्वेश्चन में. अब मैंने कोसेक थीटा लगा दिया है. नाउ लेट्स सी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसमें. 1 डिवाइडेड बाय, अब मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पर कोसेक थीटा लगा दिया, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, राइट. टैन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा. नाउ विल बी अप्लाइंग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. इसमें क्या होगा, ये थीटा आ जाएगा, आपका सिर्फ थीटा आएगा. थीटा अब आपको सब्सटीट्यूट करना है. ऐसे नहीं कि ये आंसर लिख दिया, ऐसे नहीं करना है. अभी हमने डिफ्रेंसिएशन भी तो करना है. हमने डिफ्रेंसिएशन कहाँ करा, अभी तो हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद हमें डिफ्रेंसिएशन भी करना है. अब देखो थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से देखो हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा. अब मुझे ये जो कोसेक है उसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, सो दैट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. इसमें क्या करूँगी, मैं कोसेक को उधर ले जाऊँगी तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख देना है कोसेक इनवर्स एक्स. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप.
आपको पता है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। सी में आपका नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट में। सो दिस इज सब्सटीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो बहुत बार काम आएंगी सब्सटीट्यूशन के लिए। जैसे 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा, तो ये होता है tan π/4 + थीटा। अब अगर आपको ये जो है, अगर आपका ऐसा आ जाए 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan π/4 - थीटा। तो देखो ऊपर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ऊपर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर आपका इस फॉर्म का आ जाए cos थीटा + sin थीटा, क्योंकि आपको ट्राई करना है कि आप ईजिएस्ट वे में इसको सॉल्व करो। अगर आप इसमें लेंथी प्रोसीजर करने लग जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। cos थीटा - sin थीटा, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ऐसा आ गया कुछ जैसे tan इनवर्स cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा - sin थीटा, ये क्वेश्चन है एंड दे आर आस्किंग यू टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो आप पहले इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे कर सकते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, सो यू विल गेट 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। और ये किसके इक्वल है, देखो ये इसी के इक्वल है tan π/4 + थीटा। सिंपल। बाकी आपको जितने भी आपके ITF के फॉर्मूलाज हैं आपको अच्छे से लर्न करना है वो, ठीक है। अच्छे से आपको, इवन अगर आप प्रूफ्स लर्न करना चाहते हो, उसके प्रूफ समझना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बाय सॉल्विंग दोज प्रूविंग मेथड्स। जो प्रूव्स हैं आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। इफ़ यू हैव एस चंद्स बुक, ये एक्सरसाइज 8G है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, अराउंड 27 क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इन योर बोर्ड्स। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। यू मस्ट ट्राई दिस, और अगर आपको नहीं आएगा तब आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस दिस। अब देखो कैसे करेंगे हम, tan इनवर्स, अभी जो sin x है और ये डिवाइडेड बाय 1 + cos x, आप किसी भी तरीके से कुछ सब्सटीट्यूशन लगाओ। अगर आपने अच्छे से ITF पढ़ा है तो आपको याद आ जाएंगे। अगर आपने 11 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, मैं आपको बता दूँ 11 की आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, लाइक sin 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें sin x, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। अगर हम 1 + cos x की बात करें तो ये आ जाएगा 2 cos square x/2। 1 - cos x की आप नोट कर सकते हैं इसको साथ ही साथ, इक्वल्स टू 2 sin square x/2। tan 2x कितना होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan square x। cos 2x, पहले sin 2x का बता देती हूँ, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan square x, क्योंकि सिमिलर है ना थोड़ा। देन cos 2x इज इक्वल टू 1 - tan square x डिवाइडेड बाय 1 + tan square x। अब धीरे धीरे जैसे मुझे फॉर्मूलाज याद आएंगे इन क्वेश्चंस को देखते हुए, तो मैं आपको धीरे धीरे आपको सारे लिखाती रहूँगी। अब देखिए sin x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 cos x/2। डिनोमिनेटर में 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos square x/2। cos x/2 and cos x/2 cancel, 2 cancel, tan inverse tan x/2। Now you will apply the self-adjusting property that is there in inverse trigonometric functions chapter. This will be equal to x/2. Now you have to differentiate this portion with respect to x. d by dx of x/2 which is equal to 1/2, right? In this question हमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं लगाना था, ठीक है, हमें बस फॉर्मूलाज पुट करने थे। सब्सटीट्यूशन में उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे एक्स की जगह हम tan थीटा लगा रहे थे, एक्स की जगह हम cos थीटा लगा रहे थे। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना था क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। तो इसका आंसर है 1/2।
क्वेश्चन नंबर 8, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा ITF के फॉर्मूलाज, तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, बट अगर आपको नहीं आएगा याद तो आप पता नहीं इसको कहीं डिफ्रेंशिएट करने लग जाओगे और इतना लंबा ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला ITF का, राइट। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्सटीट्यूशन, जैसे हम एक्स के जगह tan थीटा पुट कर सकते हैं एंड सो ऑन, साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो आप देख लो उससे भी आ रहा है, बट सबसे इजी होगा यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो जो आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ये 2 tan इनवर्स एक्स है। अब आपको डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, 2 being a constant, we will be taking this out, 2 d by dx tan inverse x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएँ। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब इसको ध्यान से देखो, ये कोई फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है? ऐसे में तो नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप, पर करे क्या? बट मुझे एक चीज़ दिख रही है इसमें। अगर आपको याद है अपनी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो कुछ ऐसा होता है, राइट। तो मैं यहाँ वही करने वाली हूँ। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब शायद आपको दिख गया होगा कि ये है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। अब देखो डी बाई डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही सेम आंसर आ गया जैसे ऊपर आया था। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन मेल मी। वो मेरा पेन गिर गया। नाउ विल बी ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 15, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट अस टेक x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये हिडन ट्रायल है। अगर आप बोलोगे कि मैं tan थीटा क्यों नहीं लिख सकता या कुछ नहीं लिख सकता, तो आप पहले ट्राई करिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या सब्सटीट्यूशन रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर साइन थीटा रखते हैं तो देखते अगर इससे आता है, अगर नहीं आएगा तो हम दूसरा सब्सटीट्यूशन ट्राई करेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अंदर रैशनलाइज कर सकती हूँ। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। पर ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने भी हिट एंड ट्राई लगाया और इससे मेरा हो नहीं रहा सॉल्व। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। इसका मीनिंग सब्सटीट्यूशन से नहीं होने वाला है सॉल्व। अगर आप कुछ और लगा लो tan थीटा वगैरह, ये अभी इसमें काम नहीं आएगा। तो मैं कुछ और ट्राई करूँगी, यहाँ आप देख लीजिए। क्योंकि हर स्टूडेंट ये करता है मिस्टेक कि कई बार उनका सब्सटीट्यूशन गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँगी और यहाँ देखो, ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये है P एंड ये है H। P जो हमारा है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने थीटा ले लिया है, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज H, ठीक है। अब इसका हम बेस निकालेंगे, वो कैसा आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर जो भी हमारा बेस स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्योंकि एक पहली बारी में आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि आप ट्राइंगल मेथड भी लगा सकते हैं।
ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। 4x² इज इक्वल टू b², यानी आपका जो बेस है ये आ जाएगा 2x, ये 2x आ गया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ध्यान से देखती हूँ। तो अगर ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस और ये है परपेंडिकुलर, अगर हम इसको tan इनवर्स के टर्म्स में लिखें, ठीक है, ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा, p/b होता है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स p दैट इज 1 - x² बाई b दैट इज 2x। तो मैंने एक तरीके से साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² को मैंने ये लिख दिया है tan इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 2x। क्या इससे आप सॉल्व हो सकता है, d/dx ऑफ tan इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 2x। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। ये देखिए इसके आगे d/dx ऑफ tan इनवर्स 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। अब जो ये है ये किसका इक्वल है, tan 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बात करूँ, इसको अगर रिवर्स कर दूँ, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम क्या कर दें कि चेंज कर दें, ठीक है, रिप्लेस कर दें, तो ये होता है 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। तो मतलब ये जो पोर्शन है ये है 1 डिवाइडेड बाई tan 2 थीटा। कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई tan 2 थीटा। इसको मैं लिख दूंगी tan इनवर्स cot 2 थीटा, राइट। नेक्स्ट है मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकती हूँ और उसके बाद सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकती हूँ। तो मैं यही करूँगी, tan इनवर्स tan 90 - 2 थीटा, क्योंकि tan 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट और इसमें यह आ जाएगा 90 - 2 थीटा, यानी अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। उससे पहले मैं सब्सटीट्यूशन कर दूंगी वापस। थीटा हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, सॉरी एक्स हमने स्टार्टिंग में tan थीटा लिया था। अब हमें थीटा वापस पुट करनी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, अब tan को साइड ले जाऊंगी तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखो ये हो जाएगा 90 - 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ओके। तो पहले आप ऐसे मत करना कि डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको यहीं पर, आपको पहले थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है, उसके बाद ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो नहीं, गलत हो जाएगा। आंसर आएगा, देखो इसका 90 इज अ कांस्टेंट, 0 - 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 + x²। आंसर इज -2 डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। देखो पहले मैंने इस मेथड से करा जो कि जिससे कुछ हो नहीं पाया, ठीक है, इस मेथड से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, ट्रायंगल वाले मेथड से कन्वर्ट, आपको करना आता ही है, आपने ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीख रखा है। कन्वर्ट करा मैंने इसको, तो मैंने इसको tan इनवर्स में कर दिया कन्वर्ट। tan इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 2x आया। फिर मैंने x की जगह tan थीटा लिया। उसके बाद ये मैंने करा tan इनवर्स 1 - tan² थीटा सब्सटीट्यूट करके। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो 1 डिवाइडेड बाई tan 2 थीटा एंड देन cot 2 थीटा आ गया, ये रेसिप्रोकल करके। देन tan इनवर्स tan 90 - 2 थीटा लिख दिया मैंने, और सेल्फ एडजस्ट करके 90 - 2 थीटा आ गया। उसके बाद मैंने इसको वैल्यू वापस डाली, थीटा की वैल्यू, एंड देन इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपके क्वेश्चन आए tan इनवर्स √1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, और आ जाए tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, ठीक है। जब भी आपका अंडर रूट हो तो आप कभी भी x की जगह tan थीटा पुट मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 + tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा आ जाएगा tan π/4 + थीटा। तो ये अंडर रूट में, तो ये आपको कभी यूज़ नहीं करना है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, मतलब जहाँ पर स्क्वायर रूट अंडर रूट ना हो। इस केस में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू साइन कॉस, डिपेंड करता है सिचुएशन में, ठीक है। पर यहाँ पर जब आपका अंडर रूट नहीं है तो आपको tan थीटा ही पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
आप एक और क्वेश्चन एक होमवर्क की तरह आप ले सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप होमवर्क में ट्राई करिए। पहले आप पॉज कर दो, मैं आपको हिंट बता दूंगी उसके बाद। हिंट इसमें ये है कि आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा सकते, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आप खुद सॉल्व करिए, इतना आना चाहिए। इसका आंसर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नहीं, आंसर आप ही बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए आंसर इसका। कुछ तो करना है, मुझे पता है आधे बच्चे नहीं करने वाले आलस के मारे, बट आपको करके देना है मुझे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी इम्प्लिसिट फंक्शंस में एंड डबल डिफरेंशिएशन में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब करेंगे। और मैं आपको लास्ट जो मेरी वीडियो लास्ट में जो होगी उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन के हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करूँगी, और उसमें मैंने ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व कर रखे होंगे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय।